Now, in another significant development in the Delhi blast case, according to Delhi police sources, 3 9mm caliber cartridges were recovered at the car blast site. 2 live and 1 empty shell were recovered, and these cartridges are prohibited for civilian use and are typically restricted to security forces or individuals with special authorization. Investigations are ongoing to determine how the cartridges ended up at the blast site. The most important aspect, according to sources, is the fact that the police did not find any pistol or any part of it at the scene. While cartridges were found, the weapon used to fire them has not yet been found by the Delhi police or the other probing officials. Police sources also say that they checked the cartridges of their staff present at the scene and found that none of them were missing. The police are now trying to determine how these cartridges made their way to the blast site and whether they fell from the same I-20 car that exploded after the blast. लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट को आज 7 दिन हो चुके हैं। एजेंसीज लगातार इस ब्लास्ट की तमाम जो परतें हैं उसको खोलने में जुटी हुई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाल किले के ठीक सामने हुए ब्लास्ट के फौरन बाद यहां पर जांच कर रही पुलिस और एजेंसीज को 9mm के 3 कारतूस मिले थे, जिनमें 2 जिंदा थे जबकि एक इस्तेमाल किया हुआ उसका खोखा था। ये वो जगह है जहां से लाल किले के सामने जब ब्लास्ट हुआ तो यहीं से ठीक ये तीनों कारतूस मिले थे। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कारतूस यहां पर कहां से आए और किसके थे। दरअसल 9mm के जो कारतूस है वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इसको आम इंसान इस्तेमाल नहीं करता है, ये किसी को लाइसेंस इसका नहीं मिलता, बल्कि इन गोलियों का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस या फिर फोर्स करती है। साफ हो चुका है जांच में अभी तक कि ये पुलिस का कारतूस नहीं था 9mm, तो आखिर ये जो 9mm के कारतूस थे वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। एजेंसीज को शक है कि ये कारतूस 9mm के उम्र के हो सकते हैं और ब्लास्ट के बाद कोई साजिश रही होगी। गाड़ी के अंदर ये कारतूस थे जो कि उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और जब ब्लास्ट हुआ तो लगभग 350 मीटर दूर तक ये जो गाड़ी के पार्ट्स थे, जो बॉडीज़ के पार्ट्स थे, वो सब उड़ करके गए थे। तो जो पुलिस को शक हो रहा है कि ये कारतूस भी उमर के साथ गाड़ी में मौजूद थे और जो यहाँ पर छटक कर उस वक्त गिर चुके थे। तो लेकिन इसके साथ ही कोई भी हथियार आसपास पुलिस को 9mm का नहीं मिला है। ये कारतूस किसके थे, ये बड़ा सवाल है, क्या इस्तेमाल होना था। लेकिन कहीं ना कहीं इस कारतूस के राज जो आतंकी उमर है उससे जुड़ते हुए अब पुलिस को नजर आ रहे हैं। Now, in another significant development in the Delhi blast case, according to Delhi police sources, 3 9mm caliber cartridges were recovered at the car blast site. 2 live and 1 empty shell were recovered, and these cartridges are prohibited for civilian use and are typically restricted to security forces or individuals with special authorization. Investigations are ongoing to determine how the cartridges ended up at the blast site. The most important aspect, according to sources, is the fact that the police did not find any pistol or any part of it at the scene. While cartridges were found, the weapon used to fire them has not yet been found by the Delhi police or the other probing officials. Police sources also say that they checked the cartridges of their staff present at the scene and found that none of them were missing. The police are now trying to determine how these cartridges made their way to the blast site and whether they fell from the same I-20 car that exploded after the blast. लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट को आज 7 दिन हो चुके हैं। एजेंसीज लगातार इस ब्लास्ट की तमाम जो परतें हैं उसको खोलने में जुटी हुई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाल किले के ठीक सामने हुए ब्लास्ट के फौरन बाद यहां पर जांच कर रही पुलिस और एजेंसीज को 9mm के 3 कारतूस मिले थे, जिनमें 2 जिंदा थे जबकि एक इस्तेमाल किया हुआ उसका खोखा था।
ये वो जगह है जहां से लाल किले के सामने जब ब्लास्ट हुआ तो यहीं से ठीक ये तीनों कारतूस मिले थे। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कारतूस यहां पर कहां से आए और किसके थे। दरअसल 9mm के जो कारतूस है वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इसको आम इंसान इस्तेमाल नहीं करता है, ये किसी को लाइसेंस इसका नहीं मिलता, बल्कि इन गोलियों का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस या फिर फोर्स करती है। साफ हो चुका है जांच में अभी तक कि ये पुलिस का कारतूस नहीं था 9mm, तो आखिर ये जो 9mm के कारतूस थे वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। एजेंसीज को शक है कि ये कारतूस 9mm के उम्र के हो सकते हैं और ब्लास्ट के बाद कोई साजिश रही होगी। गाड़ी के अंदर ये कारतूस थे जो कि उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और जब ब्लास्ट हुआ तो लगभग 350 मीटर दूर तक ये जो गाड़ी के पार्ट्स थे, जो बॉडीज के पार्ट्स थे, वो सब उड़ करके गए थे। तो जो पुलिस को शक हो रहा है कि ये कारतूस भी उमर के साथ गाड़ी में मौजूद थे और जो यहाँ पर छटक कर उस वक्त गिर चुके थे। तो लेकिन इसके साथ ही कोई भी हथियार आसपास पुलिस को 9mm का नहीं मिला है। ये कारतूस किसके थे, ये बड़ा सवाल है, क्या इस्तेमाल होना था। लेकिन कहीं ना कहीं इस कारतूस के राज जो आतंकी उमर है उससे जुड़ते हुए अब पुलिस को नजर आ रहे हैं। Now in another significant development in the Delhi blast case, according to Delhi police sources, 3 9mm caliber cartridges were recovered at the car blast site. 2 live and 1 empty shell were recovered, and these cartridges are prohibited for civilian use and are typically restricted to security forces or individuals with special authorization. Investigations are ongoing to determine how the cartridges ended up at the blast site. The most important aspect, according to sources, is the fact that the police did not find any pistol or any part of it at the scene. While cartridges were found, the weapon used to fire them has not yet been found by the Delhi police or the other probing officials. Police sources also say that they checked the cartridges of their staff present at the scene and found that none of them were missing. The police are now trying to determine how these cartridges made their way to the blast site and whether they fell from the same I-20 car that exploded after the blast. लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट को आज 7 दिन हो चुके हैं। एजेंसीज लगातार इस ब्लास्ट की तमाम जो परतें हैं उसको खोलने में जुटी हुई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाल किले के ठीक सामने हुए ब्लास्ट के फौरन बाद यहां पर जांच कर रही पुलिस और एजेंसीज को 9mm के 3 कारतूस मिले थे, जिनमें 2 जिंदा थे जबकि एक इस्तेमाल किया हुआ उसका खोखा था। ये वो जगह है जहां से लाल किले के सामने जब ब्लास्ट हुआ तो यहीं से ठीक ये तीनों कारतूस मिले थे। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कारतूस यहां पर कहां से आए और किसके थे। दरअसल 9mm के जो कारतूस है वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इसको आम इंसान इस्तेमाल नहीं करता है, ये किसी को लाइसेंस इसका नहीं मिलता, बल्कि इन गोलियों का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस या फिर फोर्स करती है। साफ हो चुका है जांच में अभी तक कि ये पुलिस का कारतूस नहीं था 9mm, तो आखिर ये जो 9mm के कारतूस थे वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। एजेंसीज को शक है कि ये कारतूस 9mm के उम्र के हो सकते हैं और ब्लास्ट के बाद कोई साजिश रही होगी। गाड़ी के अंदर ये कारतूस थे जो कि उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और जब ब्लास्ट हुआ तो लगभग 350 मीटर दूर तक ये जो गाड़ी के पार्ट्स थे, जो बॉडीज के पार्ट्स थे, वो सब उड़ करके गए थे। तो जो पुलिस को शक हो रहा है कि ये कारतूस भी उमर के साथ गाड़ी में मौजूद थे और जो यहाँ पर छटक कर उस वक्त गिर चुके थे। तो लेकिन इसके साथ ही कोई भी हथियार आसपास पुलिस को 9mm का नहीं मिला है। ये कारतूस किसके थे, ये बड़ा सवाल है, क्या इस्तेमाल होना था। लेकिन कहीं ना कहीं इस कारतूस के राज जो आतंकी उमर है उससे जुड़ते हुए अब पुलिस को नजर आ रहे हैं।